Hello students, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video we will be discussing important current affairs for 8th of April. The session will be quite interesting and important students. We upload the daily current affairs video at 5 a.m. in the morning. These sessions are quite interesting and important for your competitive exams. In this video students, we will be talking about the President of Chile's visit to India. Then we will be talking about Rajnath Singh, who has flagged off the INS Sunayana. Then we will be talking about Immigration and Foreigners Bill 2025 that became recently a law. Then PM Modi inaugurated 8300 crore rupees development projects in Tamil Nadu on his visit to Tamil Nadu. There are many more news in this video students, so stay tuned with us till the end. Students, if you are new to our channel, do subscribe to us. We are one-stop solution for current affairs, and share the link of this video with your friends, cousins, relatives, neighbors, and let them know about this interesting platform. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. So students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. Students, let's start with national affair. First is President of Chile, Gabriel Boric. As you can see him in the picture here, he was on a visit to India from 1st April to 5th of April. Right, this was to strengthen the 76 years of diplomatic relationship between India and Chile. Also, this is his first visit to India. During his visit, he held bilateral discussions with Prime Minister Narendra Modi and President of India Draupadi Murmu ma'am. Also, Prime Minister Narendra Modi and President of Chile, they witnessed the key signing of MOUs that includes your Antarctic cooperation. Right? Also, one more thing, remember here the discussion was on MOUs were signed on space cooperation, disability as well as for the mineral resources. Apart from this, remember here you can see during this meeting India and Chile have also agreed begin negotiations for the CEPA, that is Comprehensive Economic Partnership Agreement, that will enhance the defense and security cooperation. So which country along with India they are having negotiating on the CEPA? It is India and Chile. Then apart from this, Chilean president has also announced the introduction of multiple entry permit for Indian business persons that will simplify the visa processes for all those businessmen, individuals who are traveling from India to Chile. Next, Union Minister Rajnath Singh, he is our defense minister, as you can see him in the center here. He has flagged off INS Indian naval ship Sunayana, right, and it was for IUS Sagar mission in Karnataka. Direct question, Indian naval ship INS Sunayana was flagged off by whom? Rajnath Singh, right? Then as I said, and this news, that is it was for IUS Sagar mission. What is IOS? It is Indian Ocean Ship, and Sagar is, we know that initiative of India or the mission of India. Sagar is security and growth for all in the region. This is the Sagar mission, and this INS Sunayana, where was this launched or flagged off? It was flagged off from the Karwar naval base, that is in Karnataka. Correct? Take a note of this, students. Apart from this, Rajnath Singh has also inaugurated a 2000 crore rupees facilities under the project Seabird. This project is being developed nearly over 1100 acres, and it is said to become the largest naval base in Asia once completed. Correct? So which is India's biggest naval infrastructure project? It is Project Seabird. Moving on, next is Immigration and Foreigners Bill 2025 gets President Draupadi Murmu ma'am's assent. Assent means approval, and now it has become a
law. This deals with all the issues that are related by the foreigners for immigration, right? And here the primary objective of this is basically to enhance the national security. Also, this act has been specified that any foreigner who possesses threat to the national security, to Indian security, to our sovereignty or integrity of India will not be allowed into the country or will be detained the permission to stay in India. Right? That means if he's in India and he's not following the laws, he's threat to India, then we can make him stay in the country. And if he's someone outside India and he's a threat person to India, then we can deny the entry to that person into India. Also, the act has provision to impose penalties on the foreigners that are entering India without a valid passport or without any proper travel document, and here the penalties of jail time can be up to a maximum of 5 years or 5 lakh rupees, and both of them can also be implemented. Moving on, next is Prime Minister Narendra Modi has inaugurated 8,300 crore rupees development project, and they have been inaugurated in Tamil Nadu, right? Prime Minister Narendra Modi, he laid the foundation stone here for various development projects in Raveshwaram, that is in Tamil Nadu, correct? And here important thing that you need to remember, one is the Pamban Bridge, right? PM Modi inaugurated this new Pamban rail bridge, that is India's first vertical lift sea bridge. What is this Pamban bridge? See, say this is a sea and this is your bridge, and from this it can be used to lift it over, right? That means it can go like this, right? That means from here the ships can pass through it, right? So this is your Pamban rail bridge, that is India's first vertical lift sea bridge, correct? Take a note of this. If we talk about Tamil Nadu, who is the Chief Minister? M.K. Stalin. Who is the Governor here? R.N. Ravi. Capital is Chennai. Next is NSO, that is your National Statistical Office. This comes under the Ministry of Statistics and Program Implementation. NSO has recently unveiled a digital initiatives that will strengthen India's statistical ecosystem, right? What are the digital initiatives that we are talking about? It is your micro data portal first. Second is a website of NSSTA, that is National Statistical System Training Academy, right? So these things has been launched. And third thing, remember, an AI machine learning based classification tool, AI ML based tools have been launched that will enhance the statistical infrastructure. Statistics in basically it combines data, and based on the data various outcomes analysis is being done on those data so that meaningful output can be projected, right? So it is NSO, they have launched this digital initiatives, that is your micro data portal. Second is your website of NSSTA, and third is AI ML based tools have been launched that will help to provide better data. This micro data portal, remember, this is a revamped portal that has been launched here. This will provide access to extensive statistical data sets from various surveys and economic censuses. Moving on, next is Indian Army's White Tiger Division conducted air defense drill with OSA AK-9K33 missiles in Odisha. This is the name of the missile. As you can see it in the picture here, right? This is the missile that we are talking about, correct? And Indian Army's, it is White Tiger Division under the Southern Command, they conducted this air defense missile firing drill. That is, this is the missile here. It was at the Gopalpur Seawards firing range in Odisha, correct? Take a note of this, very important, students. If we talk about Indian Army, who is the Chief of Army Staff here? General Upendra Dwivedi, headquartered in New Delhi, established in 1895. Next is Indian Army has successfully demonstrated the MUMT capability during exercise Sarva Shakti. I repeat, Indian Army, we have our force Indian Army has successfully demonstrated the MUMT. What is this? Manned unmanned teaming capability during the Sarva Shakti exercise. What is this? Basically, with the help of artificial intelligence, drones that are the unmanned aerial vehicles, UAVs, and manned are the, say for example, your car, your tanks, correct? So
these manned unmanned teaming or capabilities has been demonstrated here, that we can use both manned operation, we can conduct both manned operation as well as the unmanned operation using these drones and helicopters, correct, that are your autonomous platforms. With this you will be seeing real time surveillance will be increased, target acquisitions will be increased, as well also we will be seeing the enhancing in the operational efficiency and the battlefield awareness. Moving on, next, international affairs. Thailand has hosted the 6th edition of the BIMSTEC summit that was held in Bangkok, Thailand. What is BIMSTEC? It is Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation. There was a theme under which this was held as students, that is important. Theme being prosperous, resilient and open BIMSTEC. I repeat, prosper, resilient and open BIMSTEC. This summit was chaired by Thailand's Prime Minister P. Shinawatra. Correct. And also this summit followed the 25th session of the BIMSTEC senior officials meeting on 2nd of April and 20th session of the ministerial meeting of the BIMSTEC on 3rd April. Also, one of the key outcomes of the summit was the launch of the BIMSTEC Bangkok Vision 2030, the first ever vision document of the BIMSTEC that outlines a strategic plan to build a pro-BIMSTEC by 2030. Next is Hungary has announced withdrawal from ICC. What is ICC? ICC is your International Criminal Court, right? This is the organization that looks after all the criminal charges or criminal activities that is going on globally, correct? Headquarter of this ICC is in The Hague, Netherlands. And here remember, according to Article 127 of the Rome Statute, the treaty was set up. The treaty that set up the ICC, here this withdrawal will become official 1 year after the notice is sent, according to this Article 123. So now they recently stated that we have announced the withdrawal, so after 1 year they can exit this ICC. Also, Hungary became a member of the ICC in 1999. Right? Next, how many members country are there in this ICC? A total of 125. Next is SEBI has issued framework for registration of permanence validation agency. Now, what does this mean? See, whenever an insurance company or any financial product is being advertised by any organization so that mass adoption can take place and investors or customers can be attracted to those financial products, what generally happens is that these organizations, they do misleading claims, right? They talk about the misleading claims, they talk about fake claims, and they talk about the fake performance advertisements are being provided, right? So in order to curb all this so that the customer is getting the right information without any misleading claim about the performance of any financial product by these investment advisors, these stock brokers or research analysts, SEBI has recently issued this framework for the registration of these performance validation agencies. Correct? Take a note of this. Here, this new framework aims to prevent misleading claims about the past performance in advertisement. As per SEBI's circular, a credit rating agency will be recognized as a PARVA in terms of Regulation 12 so and so. In addition to that, these credit regulating agencies engaged with the recognized stock exchange will act as a PARVA data center, that is your PDC. Also, for a CRA to act as a PRAV, right, that is PARRVA, they must have a minimum of 15 years of past experience and a minimum net worth of 100 crore rupees here, right? And SEBI has launched these new guidelines or this issued this new framework. If we talk about SEBI, who is the chairperson of SEBI? Tuhin Kanta Pandey, headquartered in Mumbai, Maharashtra. Moving on, students, next is SBI reports project India's inflation to stay below 4% in the first half of FY26. See, SBI, that is State Bank of India, Mumbai, Maharashtra based bank, chairman is CS Sethi, right? And he has this SBI has projected that India's retail inflation will remain between 3.9 to 4% in first half, that is from April to September of FY26. Next is SBI, we saw this. Next is environment.
New land snail species has been discovered and it was discovered in Maharashtra's Konkan region. What is the name of this species? It is Theobaldius concanensis. Right? I repeat, Theobaldius concanensis. Right? This is the new land snail species discovered in Konkan region of Maharashtra. Next is related to sports, students. Red Bull's Max Verstappen, as you can see him in the picture here, has won the F1 Japanese Grand Prix for the fourth consecutive time. Right, so who won the F1 Japanese Grand Prix 2025? Won by Max Verstappen. He drives for Red Bull. Let me show you the winners. Max Verstappen, then Lando Norris, then Oscar Piastri on the third position. Moving on to books and authors, students. Himachal Pradesh Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu has launched a poetry collection that is Branch, right? The Fragrance of Words. This was launched by, this was authored by Anupma Sharma. And this book was launched by whom? Launched by the Chief Minister of Himachal Pradesh, Sukhwinder Singh Sukhu. Correct? Take a note of this. Then this book will be published by Satluj Prakashanap in Panchkula, Punjab. This is a 56-page anthology that comprises of 39 poems. Moving on to important days. International Day of Sport for Development and Peace observed on 6th of April. This day is observed to acknowledge the role of sport in promoting human rights, fostering social inclusion, right? And this year it was the 12th edition of this day that was observed. There is a theme here also, students, leveling the playing field, sports for social inclusion. This is the theme here that I need you all to remember. Next is your International Day of Reflection on the 1994 genocide against the Tutsi in Rwanda, observed on 7th of April. And this day recognizes the genocide that took place, in which more than 1 million victims were there who perished during the 100-day mass slaughter in Rwanda. Right, this year was the 31st edition of this day that was observed. Moving on, your World Health Day observed on 7th of April. This day is observed basically to create awareness about our health, right? And also this year it was the 77th anniversary of the World Health Organization, as it was established in the 1948. Correct? The theme for the World Health Day is Healthy Beginnings, Hopeful Future. I repeat, Healthy Beginnings, Hopeful Future. So that's all for the day, students. Now let's move to the revision part that will be beneficial for your learning. Next, which country won the second edition of the ICC Under-19 Women's T20 World Cup for the second consecutive time by defeating South Africa in Malaysia? So this is our country, India, that has won the ICC Under-19 Women's T20 World Cup, and this was the second edition of this event. We defeated South Africa in the finals, and the final event was held where? It was held in Kuala Lumpur, Malaysia. Next, who recently won the 87th Tata Steel Chess Masters 2025 trophy by defeating world chess champion D. Gukesh, that was held in Netherlands? So R. Pragnanda, right, has recently won the 87th edition of the Tata Steel Chess Masters Trophy 2025, and he became the first Indian chess player since Vishwanath Anand in 2006 to win the Tata Steel Masters title. Next, find out the Indian player who has announced the retirement from all the forms of cricket, making the final appearance at Ranji Trophy for West Bengals against Punjab. So Vridhaman Shah has taken retirement recently. Next, which team recently won the first ever title of the Men's Hockey India League 2024-25 held in Odisha by defeating Hyderabad Tufans? So Sarachi Raha Bengal Tigers, they have recently won the first ever title of the Men's Hockey India League by defeating Hyderabad Tufans by 4-3 in the finals that was held in Odisha. Next, Shimona Halep, a two-time Grand Slam champion and former world number 1, announced her retirement from professional tennis in Feb 2025. Which country did she represent? She represented Romania, right? And in 2017, she became the world's number 1 Women's Tennis Association ranking, or she became the number 1 in that ranking. Next, in Feb, Marcelo Vieira da Silva Jr., known as the Marcelo, announced his retirement from professional football. He was a former Real Madrid and dash defender, right? He used to play for Real Madrid, correct? And he belongs to Brazil. Real Madrid is the name of the football club. Next, which country topped the medal tally at the 2025 Para Archery Asia Cup in Bangkok, Thailand by winning 6 gold
medals. So our country India has topped the medal tally at the 2025 Para Archery Asia Cup in Bangkok, Thailand. Next, who recently won the singles title at the 4th edition of the Mumbai Open 2025 Women Tennis Association 125 event held in Mumbai by defeating Manan Chaya, right? So Jill Belen Takeman has won it. Next, name the former Sri Lankan captain who announced his retirement from international cricket in Feb 2025. So Dimuth Karunaratne has recently, he's the former Sri Lankan captain who announced his retirement. Next, who won the men's single title at the 5th edition of the Chennai Open ATP Challenger held in Chennai, Tamil Nadu? So, Kriyan Jacquet has recently won the men's single title at the 5th edition of the Chennai Open ATP Challenger held in Chennai, Tamil Nadu. Next, identify the country that topped the medal tally at the 9th Asian Winter Games held in Harbin, China from 7th to 14th of Feb. So, it is China that has topped the medal tally here. Next, which country has won the 4th edition of the Badminton Asia Mixed Team Championship by defeating China in the finals on 16th of Feb? It is Indonesia. Next, when will the inaugural Olympic Esports Games take place in Riyadh, Saudi Arabia as announced by International Olympic Committee on 11th of Feb 2025? So, these games are scheduled to take place in 2027. Next, which of the following statements are correct with respect to 38th edition of the National Games? If we look at the options here, option A and C are right here. Right? B is wrong. B is saying Maharashtra secured the top position with a total of 121 medals including 68 gold, 26 silver and 27 bronze. Is it correct? No. Maharashtra secured the second position here. Correct? Take a note of this. And who secured the top position here? It is Survey Sports Control Board. They secured the top position in the 38th edition of the National Games with 121 medals in which there were 68 golds, right? And 26 silver and 27 bronze. So instead of Maharashtra, it should be SSCB. They secured the first position. Maharashtra was on the second position here with 201 medals, but they won 54 gold. Next, who won the men's title at the 2025 Asian Snooker Championship held in Qatar by defeating Amir Sarkosh? So Pankaj Advani, right? They have won the men's title at the 2025 Asian Snooker Championship. Next, mention the country that topped the medal tally by securing 5 gold, 2 silver and 1 bronze at the 2025 Archery Asia Cup World Cup Ranking Tournament Stage 1 that was held in Bangkok, Thailand in Feb 2025. So it is our country, India. Next, who was appointed as the chairman of the ad hoc committee formed by the Indian Olympic Association to replace the Boxing Federation of India on 24th of Feb 2025? So, Madhukant Pathak has appointed as the chairman of the ad hoc committee formed by Indian Olympic Association. So, next question. Mention the football club that recently won the League Winners' Shield at the 24-25 Indian Super League. Which is that club? It is Mohun Bagan Super Giants Club of Kolkata. They have recently won the League Winners' Shield. Take a note of this, students. So that's all for the day. Now let's move to some revision part, students, that will be beneficial for your learning. Now students, let's move to the homework section. First is PM Vidya Lakshmi scheme to boost the education loans was launched by which bank? Second question, who has been appointed as the Joint Secretary of UPSC? Third question, who has been recently appointed as the Managing Director and CEO of IFCI? Fourth question, tell me recently who has won the Chinese Grand Prix? Fifth question, tell me recently who has won the bronze medal in the Asian Wrestling Championship. So these are your 5 homework questions, students, and I need to see maximum participation from all the students watching this video. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 8 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा स्टूडेंट्स। हम डेली बेसिस पे सुबह 5 बजे ये सेशन अपलोड करते हैं। इसको ज़रूर देखा करो, बहुत कुछ आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ चिली गैब्रियल बोरिक। ये अभी विजिट पे थे इंडिया में फ्रॉम 1 to 5 of अप्रैल। कई सारे MOUs यहाँ पे साइन किए, उनको डिस्कस करेंगे। देन हम बात करेंगे राजनाथ सिंह के द्वारा भी एक INS सुनियाना को यहाँ पे
फ्लैग ऑफ किया गया, कहाँ पर? कर्नाटका में। इसको डिस्कस करेंगे। देन हम बात करेंगे इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल, ये एक लॉ बन गया है अभी रिसेंटली, इसको डिस्कस करेंगे। एंड हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन्होंने तमिलनाडु में 8,300 करोड़ रुपीस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च किए, राइट। तो इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो और शेयर कर दो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, कजन्स, रिलेटिव्स एंड नेबर्स के साथ। वी टीच बेस्ट कंटेंट हमारा रहता है एंड आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी बेनिफिट रहेगा। Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. So students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स नेशनल अफेयर से। प्रेसिडेंट ऑफ चिली गैब्रियल बोरिक, आप यहाँ पे इनको पिक्चर में देख सकते हैं ऑन द लेफ्ट, राइट। ये भी इंडिया के विजिट पे थे फ्रॉम 1 अप्रैल टू 5 अप्रैल। इनके विजिट के दौरान कई सारे MOUs यहाँ पे हमें साइन होते हुए देखे एंड ये इंडिया के विजिट पे थे टू सेलिब्रेट 76 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड चिली, करेक्ट। तो ये चिली के प्रेसिडेंट हैं गैब्रियल बोरिक। तो इसी के साथ साथ याद रखेंगे अभी रिसेंटली एक बायलेटरल डिस्कशंस हुई, राइट, इनके बीच में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम PM मोदी के बीच में। फिर इसी के साथ साथ ड्यूरिंग दिस मीट इंडिया एंड चिली ने अभी CEPA कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट के ऊपर भी नेगोशिएशन यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है एंड चिलियन प्रेसिडेंट गैब्रियल बोरिक इन्होंने अनाउंस किया इंट्रोडक्शन ऑफ अ मल्टी एंट्री परमिट इंडियन बिजनेसेस के लिए, इंडियन बिजनेसमैन के लिए, ताकि ये चिली में यहाँ पे इनके लिए जो वीज़ा प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई किया जा सके। नेक्स्ट आ जाते हैं राजनाथ सिंह, जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, आप इनको यहाँ पे देख सकते हैं। इन्होंने फ्लैग ऑफ किया INS सुनियाना, राइट। ये क्या है आपका? एक इंडियन नेवल शिप है, करेक्ट। एंड ये IUS सागर मिशन के अंडर इसको लॉन्च किया गया कर्नाटका में। IUS सागर क्या है? ये आपका एक मिशन है, इंडियन ओशन शिप, करेक्ट। सागर एक इनिशिएटिव था, ये क्या था? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। एंड ये कर्नाटका में कहाँ पर? करवार नेशनल बेस पर इसको फ्लैग ऑफ किया गया राजनाथ सिंह के द्वारा, करेक्ट। टेक अ नोट ऑफ दिस स्टूडेंट्स। चलिए इसी के साथ साथ एक और चीज़ याद रखेंगे, हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट सी बर्ड की। ये इंडिया का बिगेस्ट नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो कि राजनाथ सिंह जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया। 2000 करोड़ की लागत से इसको यहाँ पे बनाया जा रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 को। इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम का असेंट मिल गया, असेंट मतलब अप्रूवल मिल गया है। ये बेसिकली लॉ क्या कहता है कि जो भी इमिग्रेंट्स हैं, यहाँ पे जो फॉरेनर्स हैं इंडिया में आते हैं, उनको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स उनके पास होना चाहिए, प्रॉपर पासपोर्ट उनके पास होना चाहिए, राइट। फिर इसी के अलावा अगर किसी भी फॉरेनर को इंडिया को लगता है कि ये थ्रेट है हमारी नेशनल सिक्योरिटी सॉवरेनिटी के ऊपर, तो उनको यहाँ पे 5 साल की जेल या फिर 5 लाख रुपए उनको फीस, राइट, या दोनों उनको यहाँ पे हो सकता है, करेक्ट। तो ये है आपका इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल ऑफ 2025 जिसको अभी अप्रूवल मिला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया 8,300 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन तमिलनाडु, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे याद रखनी है ना, वो क्या है, इन्होंने इनॉग्रेट किया है पंबन रेल ब्रिज को, जो कि इंडिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज रहेगा। ये क्या होता है सी ब्रिज, वर्टिकल लिफ्ट? जैसे ये मान लो आपको ये ब्रिज है, तो जब मान लो नीचे से कोई शिप को ट्रैवल करना है, तो ये जो पुल है ना, ये यहाँ पे ऐसे पुल ये उठ जाएगा, राइट, ये यहाँ से उठ जाएगा। तो इससे क्या होगा, बीच में जगह बन जाएगी एंड पुल ईजिली यहाँ से क्रॉस कर पाएगा, ठीक है।
फिर आ जाते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन रहेंगे? एम के स्टालिन। एंड गवर्नर है आर एन रावी जी, चेन्नई कैपिटल। नेक्स्ट है एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर आता है। इन्होंने अनवेल किया डिजिटल इनिशिएटिव ताकि इंडिया का जो स्टैटिस्टिकल इकोसिस्टम है उसको ऑटोमेटिक किया जा सके। देखो जितना डाटा होगा ना हमारा उतना और बेटर हम आउटकम्स यहाँ पे प्रोजेक्ट कर सकेंगे। स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे हम मीनिंगफुल आउटपुट यहाँ पे निकाल सकते हैं, राइट। डाटा एनालिस्ट भी तो ये क्या होता है, डाटा को लेते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, मीनिंगफुल आउटपुट देते हैं, ठीक है। तो 2 इनिशिएटिव यहाँ पे लॉन्च किए गए। पहला इनिशिएटिव रहेगा वो है आपका माइक्रो डाटा पोर्टल। माइक्रो डाटा पोर्टल ये एक रिवैम्प्ड वर्जन रहेगा इसका, राइट। पहले भी ये लॉन्च किया गया था। ये इनिशिएटिव क्या है, बेसिकली आपका जो स्टैटिस्टिकल डाटा सेट है उनको नेशनल सर्विस के सेंसस के स्टोर किया जा सके। दूसरा आ जाता है आपका इनिशिएटिव वो है वेबसाइट ऑफ NSSTA, नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम ट्रेनिंग अकेडमी की एक वेबसाइट यहाँ पे लॉन्च करी। और तीसरा AI मशीन लर्निंग बेस्ड आपके यहाँ पे टूल किट्स यहाँ पे लॉन्च की गई हैं ताकि आपके टास्क को और सिंप्लीफाई किया जा सके। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स इंडियन आर्मी के वाइट टाइगर डिवीजन, ये सदर्न कमांड के अंडर आती है। इन्होंने कंडक्ट किया एयर डिफेंस ड्रिल विद OSA AK-9K33। ये क्या आपकी ये एक मिसाइल आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। उड़ीसा में इस मिसाइल को भी रिसेंटली टेस्ट किया गया था। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स इंडियन आर्मी ने सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया MUMT कैपेबिलिटी ड्यूरिंग एक्सरसाइज सर्वशक्ति। ये MUMT क्या है, ये है मैंड अनमैंड टीमिंग टीम। देखो मैंड हो गया जिसमें आपका ह्यूमंस का होना प्रेजेंस जरूरी है, जैसे टैंक हो गए, आपका एयरक्राफ्ट हो गए, राइट। फिर आ जाता है एक अनमैंड। अनमैंड क्या होता है, अनमैंड एरियल व्हीकल्स, UAVs, आपके ड्रोन्स हो गए, राइट। तो इंडिया ने यहाँ पे कैपेबिलिटी शो की एंड इंडियन आर्मी ने सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया कि हम आपका बोथ मैन एंड अनमैन टीमिंग कैपेबिलिटी हमारी यहाँ रहेगी एंड यहाँ पे हम मिलजुल के काम कर सकते हैं इन इक्विपमेंट के साथ, बोथ फॉर आपके प्रेजेंस में जो लोग वहाँ पर हैं, राइट। एंड नेक्स्ट पे आ जाते हैं इंटरनेशनल अफेयर स्टूडेंट्स। अभी थाईलैंड ने होस्ट किया 6ठा बिम्स्टेक समिट। ये कहाँ पर हुई, बैंकॉक थाईलैंड में हुई थी। डायरेक्टली इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। बिम्स्टेक होता क्या है, बिम्स्टेक है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। इसकी एक थीम भी याद रखेंगे, थीम रहेगी प्रॉस्परस, रेजिलियंट एंड ओपन बिम्स्टेक, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिप्रेजेंट किया इंडिया को एट द 6th 6ठी बिम्स्टेक समिट के दौरान, राइट। इसी के अलावा याद रखेंगे इस समिट के बाद 25वां सेशन हुआ बिम्स्टेक की सीनियर ऑफिशियल्स मीटिंग का एंड 20वां सेशन हुआ मिनिस्ट्रियल्स मीटिंग का ऑफ बिम्स्टेक 3 अप्रैल इन बैंकॉक। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, हंगरी अनाउंसेस विड्रॉल फ्रॉम ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, राइट। तो 1 साल जब ये अनाउंसमेंट हुई है ना, अब इसके 1 साल बाद यहाँ से ये एग्जिट कर पाएंगे, ऐसे इनकी गाइडलाइंस होती है, राइट। तो हंगरी ने अनाउंस किया विड्रॉल फ्रॉम ICC, डायरेक्ट इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। एंड हंगरी 1999 में यहाँ पे मेंबर बन गई थी आपकी ICC की। नेक्स्ट आ जाते हैं, सेबी ने इशू किया फ्रेमवर्क फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ परफॉर्मेंस वैलिडेशन एजेंसी। अब देखो ये बेसिकली है क्या कि सेबी ने बोला कि, या फिर हम इसको ऐसे समझो कि मान लो किसी बैंक ने अपना कोई ना फाइनेंशियल प्रोडक्ट निकाला एंड उसको वो चाहते हैं कि मार्केट में उसकी मार्केटिंग हो जाए, वो सेल हो जाए, राइट। तो ऐसी कई बार क्या होता है फिर ऐसे केस में कि कंपनीज ना मिस सेलिंग करती है, होता कुछ प्रोडक्ट है बोलती कुछ है, करेक्ट, एंड सर्विसेज भी उस हिसाब से फिर प्रोवाइड नहीं कराती। तो अभी रिसेंटली सेबी ने इशू किया फ्रेमवर्क फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ परफॉर्मेंस वैलिडेशन एजेंसीज, करेक्ट। इससे क्या होगा, जो भी मिसलीडिंग क्लेम्स है किसी भी प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस की, वो यहाँ पे मैनेज की जाएगी, उसको मॉनिटर किया जाएगा एंड उसके बेसिस पे यहाँ पे फर्दर यहाँ पे इनको अप्रूवल दिया जाएगा कि आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, मार्केट कर सकते हैं, राइट। क्यों क्या होता है अभी केसेस में कि मिसलीडिंग क्लेम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, चीज़ कुछ है, बोल रही कुछ जा रही है, खरीदा किसी और रेट पर जा रहा है, एक्चुअल रेट कुछ और है, राइट। तो इनसे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। सेबी की चेयरपर्सन कौन है नए, वो हैं तुहिन कांता पांडे। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने प्रोजेक्ट किया इंडिया का इन्फ्लेशन टू स्टे बिलो 3.9 से 4% के बीच में रहेगा इन द फर्स्ट हाफ ऑफ FY26। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, नेक्स्ट है इन्वायरमेंट के ऊपर स्टूडेंट्स, न्यू लैंड स्नेल स्पीशीज जो कि है थियोबाल्डियस कोंकनेनेसिस, ये डिस्कवर की गई कहाँ पे, महाराष्ट्र के कोंकण रीजन में, डायरेक्टली याद रखेंगे। फिर इसके बाद स्पोर्ट्स पे आ जाते हैं, रेड बुल के ड्राइवर मैक्स वर्स्टैपन, इन्होंने F1 जैपनीज ग्रैंड प्रिक्स को जीती है
फॉर द फोर्थ कॉन्जिक्यूटिव टाइम, राइट। यहाँ पे तो मैक्स वर्स्टैपन फर्स्ट, सेकंड लैंडो नॉरिस और थर्ड रहेंगे ऑस्कर पिएस्ट्री। मूविंग ऑन, बुक्स एंड ऑथर्स पे आते हैं स्टूडेंट्स। एक बुक की बात करेंगे जो कि अनुपमा शर्मा जी के द्वारा ऑथर की गई है। बुक का नाम रहेगा ब्रांच द फ्रेग्रेंस ऑफ वर्ल्ड। इस बुक को यहाँ पे याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, राइट, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, इनके द्वारा इस बुक को यहाँ पे लॉन्च करने की बात की गई। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। 6 अप्रैल को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है पीस के बारे में प्रमोट करने के लिए। एंड स्पोर्ट जो एक इम्पॉर्टेंट गेम है, सब मिलजुल के आगे काम करते हैं, एक टीम वर्क रहता है, राइट। तो इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ पीस ये काफ़ी ज़रूरी है एंड ये 6 अप्रैल को ये डे ऑब्जर्व किया गया। इसकी एक थीम याद रखेंगे, लेवलिंग द प्लेइंग फील्ड, स्पोर्ट फॉर द सोशल इंक्लूजन एंड बारहवीं एनिवर्सरी थी यहाँ पे। इसके बाद आ जाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द 1994 जेनोसाइड अगेंस्ट द तुलसी इन रवांडा इन 7 अप्रैल। 1 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों की यहाँ पे अभी निधन हो गया था, राइट, उनको मार दिया गया था इन दंगों के दौरान। तो इनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स वर्ल्ड हेल्थ डे। 7 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं। हेल्थ के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है एंड जनरली ये डे ऑब्जर्व किया जाता है बेसिकली 7 अप्रैल को। एंड 2025 में हमने इसका कौन सा एडिशन ऑब्जर्व किया है ये क्वेश्चन बता दो, इससे आपकी 2-3 चीज़ें क्लियर होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें वर्ल्ड हेल्थ डे की, किसके द्वारा ये डे ऑब्जर्व किया जाता है? यूएन के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है 7 अप्रैल को। एंड इसका हमने 77th ऑब्जर्वेंस अभी देखा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो कि 1948 में इस्टेब्लिश की गई थी। इसकी एक थीम रहेगी हैप्पी बिगिनिंग होपफुल फ्यूचर्स। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर, जिससे आपकी लर्निंग और बेटर होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर। सिप्री के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई। पूछा गया इंडिया की क्या रैंक रहेगी इन टर्म्स ऑफ द इंपोर्ट ऑफ द आर्म्स। तो इंडिया सेकंड पोजीशन पे आ जाता है इन टर्म्स ऑफ द इंपोर्ट ऑफ आर्म्स। एंड यहाँ पे टॉप किसने किया? यूक्रेन फर्स्ट पोजीशन पे था, क्योंकि यूक्रेन में भी वॉर भी चल रही है। नेक्स्ट आ जाते हैं 12वां एडिशन ऑफ इंडिया किर्गिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जो कि किर्गिस्तान में हुई। उसका क्या नाम है? वो है खंजर 8th। ये खंजर 12 सॉरी नॉट 8, ये 12th एडिशन ऑफ दिस एक्सरसाइज है। 10 से लेकर 23 मार्च तक हुई है एक्सरसाइज। नेक्स्ट 6th एडिशन ऑफ कॉर्पेट एंड 4था एडिशन ऑफ बोंगो सागर एक्सरसाइज। ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक्सरसाइज हुई है बे ऑफ बंगाल में। नेक्स्ट अभी सीरियल सप्लाई एंड डिमांड ब्रीफ एंड क्रॉप प्रोस्पेक्ट्स एंड फूड सिचुएशन रिपोर्ट, ये 2 रिपोर्ट रिलीज की गई यूनाइटेड नेशन के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। पूछा जा रहा है व्हाट इज द प्रोजेक्टेड ग्लोबल ग्रेन रिजर्व फॉर द ईयर 2025। तो कितना ग्रेन रिजर्व प्रोजेक्टेड है? यह है 869.3 मिलियन टन का। नेक्स्ट इंडिया वॉज इलेक्टेड टू लीड द 68th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन व्हाट ऑन नार्कोटिक ड्रग्स, जो कि चेयर किया गया एम्बेसडर शंभू एस कुमारन के द्वारा इन वियना। तो इंडिया ने चेयर किया ये 68th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स। Next, as per the SEBI's new regulations for small and medium enterprise, IPOs announced in March, what is the maximum allowed percentage for the offer for sale portion of the total IPO size? तो वो है 20%. Next, which of the following statement are correct with respect to the 9th edition of the International Cricket Council Championship Trophy in March 2025, जो कि दुबई UAE में हुई? तो इनमें से देखें ऑप्शन A एंड B से ये C गलत है। C कह रहे हैं जो इवेंट एम्बेसडर थे वो वीरेंद्र सहवाग, सरफराज अहमद, शेन वॉटसन एंड टिम साउथली थे। तो थे, बिल्कुल थे, लेकिन वीरेंद्र सहवाग नहीं थे। वीरेंद्र सहवाग की जगह कौन थे? वो हैं वीरेंद्र सहवाग की जगह शिखर धवन। ठीक है, अब C ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं किस स्टेट ने सेलिब्रेट किया चापचूर कूट फेस्टिवल? तो ये मिजोरम के द्वारा सेलिब्रेट किया गया चापचूर कूट फेस्टिवल। नेक्स्ट आ जाते हैं इन मार्च नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड एंड इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने MOU साइन किया टू डेवलप अ स्टेट ऑफ द आर्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। कहाँ पे? वाराणसी यूपी में इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। राइट, 150 एकड़ की साइट को इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। NH7 के ये साथ में है। नेक्स्ट कुहू फाइनेंस बैक्ड बाय वेस्ट ब्रिज कैपिटल, इन्होंने सिक्योर किया RBI लाइसेंस मार्च 2025 में टू फंक्शन एज अ NBFC, राइट, जो एनेबल करेगा स्टूडेंट्स को स्टूडेंट लोन्स अप टू 2 करोड़ रुपीज़। मूविंग ऑन, अकॉर्डिंग टू दुबई डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड टूरिज्म डाटा, किस कंट्री ने टॉप किया इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनटू दुबई, जो कंट्रीब्यूट कर रही है 21.5% ऑफ द टोटल FDI इनफ्लोज वर्थ 3.018 इन बिलियन, राइट, 3.018 बिलियन। तो अकॉर्डिंग टू दुबई डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड टूरिज्म डाटा, किस कंट्री ने टॉप किया है यहाँ पर? ये टॉप किया है हमारी कंट्री इंडिया के द्वारा।
नेक्स्ट आ जाते हैं शक्ति एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया टू मैन्युफैक्चर सप्लाई 200 डायमंड एनजी नेक्स्ट जनरेशन ट्रेनर एयरक्राफ्ट टू विच ऑर्गेनाइजेशन इंडिया। तो ये डिलीवर किए जाएंगे किसको, एरो क्लब ऑफ इंडिया को। एंड यहाँ पे यही शक्ति एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड हजार पायलट्स को भी यहाँ पे ट्रेन करने का काम करेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं द प्रेस्टिजियस ACM AM ट्यूरिंग अवार्ड ऑफन कॉल्ड द नोबेल प्राइज ऑफ कंप्यूटिंग, इनको अवार्ड किया गया इन मार्च 2025 टू पायनियर रीइंफोर्समेंट लर्नर्स। कौन कौन है, वो हैं डॉक्टर एंड्रू बार्टो एंड रिचर्ड सुटॉन। इन दोनों को यहाँ पे ACM AM ट्यूरिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया, राइट, जो कि नोबेल प्राइज ऑफ कंप्यूटिंग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं इन मार्च आइडेंटिफाई द इंडियन एयरपोर्ट दैट रिसीव द 8th कॉन्जिक्यूटिव एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड फॉर द बेस्ट एयरपोर्ट ओवर 40 मिलियन पैसेंजर्स इन द एशिया पैसिफिक रीजन। तो कौन सा वो एयरपोर्ट रहेगा, वो है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट इन मार्च अतुल कुमार गोयल, इनको अपॉइंट किया गया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, टेकिंग ओवर फ्रॉम हुम, इन्होंने किससे लिया, वो है सुनील मेहता से, ये इन्होंने सक्सीड किया सुनील मेहता को, अतुल कुमार गोयल ने। नेक्स्ट आ जाते हैं ओवर नासा ने लॉन्च किए 2 मिशन, फेयरएक्स मिशन एंड पंच मिशन फ्रॉम वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस इन फ्लोरिडा USA। इसमें से पूछा जा रहा है इनकरेक्ट बताना है, तो A तो सही है, B गलत है, C गलत है। पंच मिशन जो था ये 4 सैटेलाइट थी, सन के कोर को नहीं, सन के आउटर सरफेस कोरोना को स्टडी करने का काम करेगा, एंड प्लेनेट के मैग्नेटोस्फेयर नहीं, सोलर विंड्स को स्टडी करने का काम करेगा। वहीं पे ये जो मिशंस थे इनको स्पेसएक्स के फैल्कन हैवी रॉकेट की मदद से कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। तो नहीं, कैनेडी स्पेस सेंटर से नहीं, वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से इसको लॉन्च किया गया था, कैलिफोर्निया USA से। Next, which national sports federation suspension was lifted by the Ministry of Sports in March following it to resume its activities? तो वो है किस नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन को, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, विच ग्रेन ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट हैज़ बीन एक्सटेंडेड बाय इंडिया अंटिल 31st of March टू स्टेबलाइज द डोमेस्टिक मार्केट। तो उड़द दाल के यहाँ पे ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट को अभी एक्सटेंड कर दिया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं व्हाट वाज द टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल हाउसिंग लोन्स इन इंडिया ऑन 30 सितंबर 2024 एज पर द नेशनल हाउसिंग बैंक्स रिपोर्ट ऑन ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस ऑफ हाउसिंग इन इंडिया 2024। तो यह है 33.53 लाख करोड़ रुपीज़। नेक्स्ट आ जाते हैं विच इंडियन स्टेट बिकेम द फर्स्ट टू साइन अ सेंटर स्टेट पार्टनरशिप अंडर द बायो E3 पॉलिसी विद द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मार्च 2025। तो वो असम स्टेट रहेगी, राइट, पहला सेंटर स्टेट पार्टनरशिप रहेगी यहाँ पे बायो 3 के अंडर। नेक्स्ट, नेम द लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार सिस्टम दैट वाज रिसेंटली प्रोक्योर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। 2906 करोड़ रुपए की डील थी विद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड फॉर द डेवलपमेंट इन इंडियन एयरफोर्स। तो ये रहेगा अश्विनी, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं एज पर RBI's न्यू फ्रेमवर्क फॉर सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन इन द अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम, मिनिमम नेटवर्थ कितनी रिक्वायर्ड है विद इन द 1 year ऑफ द रिकॉग्निशन, वो है 2 करोड़ रुपए की मिनिमम नेटवर्थ। नेक्स्ट, ऑन मार्च इंडियाज लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस Mark 1 सक्सेसफुली इन्होंने टेस्ट फायर किया द डैश अस्त्रा नियर द ओडिशा। ये जो अस्त्रा मिसाइल है ये क्या है, ये है बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम। नेक्स्ट, हाउ मैनी हाउस होल्ड्स हैड सोलर रूफटॉप सिस्टम्स इंस्टॉल अंडर PM सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना एज ऑफ 10th मार्च। तो 10 लाख यहाँ पे घरों पे सोलर रूफटॉप सिस्टम इंस्टॉल किया गया है। तो दोस्तों एक और आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, नेम द न्यूज़ शेयरिंग प्लेटफॉर्म जो प्रसार भारती के द्वारा लॉन्च किया जिसने 1 साल पूरा किया इन मार्च एंड विल रिमेन फ्री टू यूज टिल मार्च 2026 टू हेल्प मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, वो है PB शबद, राइट। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे स्टूडेंट्स। इन मार्च यूनियन मिनिस्टर फॉर माइंस एंड कोल जी किशन रेड्डी जी इन्होंने लॉन्च किया इंडिया का पहला ऑक्शन फॉर एक्सप्लोरेशन लाइसेंसेस फॉर 13 ब्लॉक्स ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स इन गोवा। 3 साल तक ये आपका लाइसेंस वैलिड रहेगा। एंड पूछा जा रहा है कि ये जो एक्सप्लोरेशन लाइसेंस है ये किस अंडर एक्ट के अंडर यहाँ पे फैसिलिटेट किया गया, तो ये माइंस एंड मिनरल्स जो कि है डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2023 इसके अंडर यहाँ पे इशू किए जाएंगे। एंड 1000 स्क्वायर मीटर पर लाइसेंस यहाँ पे दिए जाएंगे एंड 3 साल तक ये वैलिड रहेगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन दैट certified the Bangalore Water Supply and Sewage Board in March 25, making it first water board in India to be recognized for their pipe drinking water supply management system. तो वो कौन सा है, वो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एंड इनके जो वाटर सप्लाई जो वाटर मैनेजमेंट है उसके लिए यहाँ पे इनको सराहा गया। नेक्स्ट, इन मार्च 6 इंडियन सिटीज वर एडेड टू द यूनेस्कोज टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इसमें से वो कौन सी नहीं है, तो वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क इसमें से नहीं है, बाकी सारी हैं।
नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंपनी जो कि पहली प्राइवेट सेक्टर री इंश्योरेंस बने इन इंडिया आफ्टर इनको R2 लाइसेंस मिल गया फ्रॉम IRDAI। R2 लाइसेंसी का मतलब ये होता है, बेसिकली ये सिग्निफाई करता है कि कंपनी को ऑथराइजेशन है कि ये री इंश्योरेंस बिजनेस कंडक्ट कर सकती है। तो कौन सी कंपनी है? वो है वैल्यू एटिक्स री इंश्योरेंस लिमिटेड। ये हैदराबाद तेलंगाना बेस्ड कंपनी है। आई रिपीट, ये बेंगलुरु कर्नाटका बेस्ड कंपनी है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मॉर्गन स्टैनली मार्च 2025 प्रोजेक्शन, बाय विच ईयर इज इंडिया एक्सपेक्टेड टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, हम जर्मनी को ओवरटेक कर लेंगे बाय ग्रोइंग बाय $5.7 ट्रिलियन। मतलब हम इतनी हमारी इकोनॉमी हो जाएगी। तो 2028 तक हम वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे, राइट, एंड पीछे छोड़ देंगे जर्मनी को। मूविंग ऑन, पतंजलि आयुर्वेदा लिमिटेड एंड धर्मपाल सत्यपाल ग्रुप, इन्होंने जॉइंटली एक्वायर किया है 98% स्टेक बाय गिविंग 4500 करोड़ रुपीस। किसका ये स्टेक एक्वायर किया है? मैग्मा HDI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का। तो ये दोनों 98% स्टेक यहाँ पे होल्ड करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं उस कंपनी का, आइडेंटिफाई करो इन इंडिया जिन्होंने रिसीव किया अप्रूवल फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रेज 100 बिलियन रुपीज थ्रू डीप डिस्काउंट जीरो कूपन बॉन्ड्स। तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा यहाँ पे ये अमाउंट रेज किया गया है थ्रू बॉन्ड्स। 10 साल का ये बॉन्ड रहेगा, वैलिड रहेगा, राइट। कोई फिक्स अमाउंट नहीं मिलेगा, 20 से 25% यहाँ पे डिस्काउंटेड ये मिल रहे हैं। एंड जब ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स मिलेंगे आपको, राइट, वो अट्रैक्टिव रहता है। अभी रिसेंट में डेली हर साल यहाँ पे रिटर्न नहीं आएगा आपका, फिक्स रिटर्न नहीं होता। नेक्स्ट, नेम द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने 11,000 करोड़ रुपए का लोन अग्रीमेंट साइन किया विद आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी इन मार्च फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अमरावती, आंध्र प्रदेश। तो क्या नाम रहेगा उस ऑर्गेनाइजेशन का? वो है आपका, जिन्होंने अभी ये 11,000 करोड़ रुपए का लोन अग्रीमेंट साइन किया, हुडको, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द डिजिटल इनिशिएटिव जो कि RBI के द्वारा लाया गया है दैट रिसीव्ड ग्लोबल रिकॉग्निशन इन मार्च बाय अर्निंग दैम, मतलब इन्होंने उसके उन दो इनिशिएटिव्स के लिए उनको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया RBI को फ्रॉम सेंट्रल बैंकिंग पब्लिकेशन ऑफ UK। कौन से अवार्ड्स हैं? वो है सारथी एंड प्रभा। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु वाज अपॉइंटेड एज द 24th प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा इन मार्च सक्सीडिंग जस्टिन ट्रूडो। तो कौन है? वो है मार्क जोसेफ कार्नी। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन मार्च इसरो, इन्होंने सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी के साथ टाई अप करके इंडिया का पहली 32-बिट माइक्रो प्रोसेसर्स को बिल्ड किया। कौन से दो माइक्रो प्रोसेसर्स हैं वो हैं आपके विक्रम 3201 एंड कल्पना 3201। इन दोनों को स्पेस एप्लीकेशंस में यूज किया जाएगा, राइट। जो भी स्पेस की मान लो इक्विपमेंट है उसमें इन चिप्स को, माइक्रो प्रोसेसर को यूज किया जाएगा। नेक्स्ट, किन्होंने अभी 2025 का सीजन जीता ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड प्रिक्स जो कि एल्बर्टा पार्क सर्किट में हुआ था मेलबॉर्न USA में, मेलबॉर्न ऑस्ट्रेलिया में। तो किन्होंने इसको जीता? वो है कौन रहेंगे? वो है लैंडो नॉरिस, राइट। लैंडो नॉरिस मैक्लेरन के लिए ड्राइव करते हैं, UK से बिलोंग करते हैं। मैक्स वर्स्टेपन रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं, ये सेकंड पोजीशन पे रहे। एंड जॉर्ज रसल यहाँ थर्ड पोजीशन पे रहे, ये मर्सिडीज के लिए ड्राइव करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंट्री में सी वाटर डिसैलिनाइजेशन प्लांट अभी स्टैब्लिश किया जाएगा एज पर द कॉन्ट्रैक्ट बाय जॉइंट वेंचर ऑफ L&T एंड लेटानिया SA स्पेन। इन दोनों के बीच में ये हुआ है। तो सऊदी अरेबिया में ये डिसैलिनाइजेशन प्लांट रहेगा। डिसैलिनाइजेशन में क्या होता है? जो सी वाटर होता है, ओशन वाटर होता है, उसमें से सॉल्ट अलग कर लिया जाता है एंड उसमें से आपका क्लीन ड्रिंकिंग वाटर अलग कर दिया जाता है ताकि जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन मार्च यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस निर्मला सीतारमन, इन्होंने लॉन्च किया मोबाइल एप्लीकेशन फॉर प्राइम मिनिस्टर्स इंटर्नशिप स्कीम, PMIS स्कीम के अंडर, राइट। यहाँ पे जो यंग इंडिविजुअल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको यहाँ पे इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाएगी। स्टाइफन मिलेगा 5,000 रुपये पर महीना। एंड ये इंडिया की जो टॉप 500 कंपनीज हैं वहाँ पे इन बच्चों को, इन स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए यहाँ पे इंटर्नशिप प्रोवाइड कराया जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? द फर्स्ट फैसिलिटेशन सेंटर फॉर PMIS कहाँ पे लोकेटेड है? ये कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट है, किन्होंने अज्यूम किया ऑफिस एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ ट्रिनिडेड एंड टोबैगो ऑन मार्च सक्सीडिंग डॉक्टर कीथ रॉबले। तो हु अज्यूम द ऑफिस? वो है स्टुअर्ट रिचर्ड यंग। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द वीमेंस क्रिकेट टीम जिन्होंने अभी वीमेंस प्रीमियर लीग को जीत लिया है। थर्ड एडिशन था, मुंबई इंडियंस के द्वारा इसको जीता गया। मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को फाइनल में हराया एंड मुंबई कैपिटल्स को कैप्टन किया गया किनके द्वारा? हरमनप्रीत कौर के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं, मेंशन द कंपनी जिन्होंने लॉन्च किया ओपन सोर्स लाइट वेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल सीरीज गैमा 3 जो कि सक्सेसर है गैमा 2 का। तो ये किसका है? ये गूगल का है। टेक अ नोट ऑफ दिस, राइट। नेक्स्ट, इन मार्च लोकसभा सेक्रेटरीट कोलैबोरेटेड विद मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू डेवलप AI पावर्ड सॉल्यूशंस। क्या नाम रहेगा उस सॉल्यूशन का? दैट इज एम्ड एट प्रोवाइडिंग मल्टीलिंगुअल सपोर्ट एंड इंप्रूविंग पार्लियामेंट्री ऑपरेशंस।
तो क्या नाम रहेगा उसका, वो है संसद भाषिनी। मल्टीलिंगुअल सपोर्ट प्रोवाइड कराने का ये काम करेगा। नेक्स्ट, इन विच इंस्टीट्यूट इसरो ने अभी लॉन्च किया, इसरो के चेयरमैन डॉक्टर वी नारायण जी ने इनॉग्रेट किया श्री एस रामाकृष्णन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन फ्लूइड एंड थर्मल साइंस रिसर्च इन मार्च 2025, तो वो है IIT मद्रास। नेक्स्ट है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट इन कोलैबोरेशन विद इंडिया AI अंडर द MEITY इन्होंने लॉन्च किया इंडिया AI हैकेथॉन 2025, जिसकी थीम रहेगी मिनरल टारगेटिंग यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यह है GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस मेंशन करो उस सिटी को विच इज सेट टू लॉन्च इंडिया का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट अंडर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन वाया PPP मॉडल, जो कि है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। तो कौन सी सिटी रहेगी, वो है इंदौर, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, अभी RBI ने साइन किया एक MOU किसके साथ, बैंक ऑफ मॉरिशस के साथ, ताकि इंडियन रुपीज एंड मॉरिशियन रुपी के बीच में जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन है वो कैरी आउट कर सके एंड हम इन दोनों कंट्रीज को लोकली यहाँ पे प्रमोट कर सकें ट्रेड के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, मेंशन द इंडियन लिटरेरी थियोरिस्ट एंड पद्म भूषण अवार्डी हु वाज ऑनर्ड विद द 2025 हॉलबर्ग प्राइज फॉर हर इन्फ्लुएंशियल कॉन्ट्रीब्यूशंस टू फेमिनिस्ट थ्योरी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड पोस्ट कॉलोनियल थॉट। तो कौन है, वो है गायत्री चक्रवर्ती स्पीवक। नेक्स्ट आ जाते हैं, बजाज फिनसर्व लिमिटेड इन्होंने एक्वायर किया व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टेक हेल्ड बाय अलायंस SE इन देयर इंडियन नॉन लाइफ एंड लाइफ इंश्योरेंस जॉइंट वेंचर इन मार्च 2025, तो 26% का स्टेक रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस स्पेसक्राफ्ट ने रिटर्न किया सुनीता विलियम्स एंड बुच विलमोर को फ्रॉम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आफ्टर 9 months। तो स्पेस कौन सा था वो स्पेसक्राफ्ट, वो है SpaceX का क्रू ड्रैगन कैप्सूल एंड यहाँ पे जो मिशन का नाम था वो था क्रू 9। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द स्पोर्ट दैट अप्रूव्ड बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी फॉर इंक्लूजन इन 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक गेम्स में जो स्पोर्ट्स ऐड किया जाएगा वो है बॉक्सिंग। नेक्स्ट, नेम द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप जिसको लिया अभी लॉन्च किया जाएगा इन द सेकेंड हाफ ऑफ 2025 अनाउंस्ड बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जेनसेन हुआंग ऑफ एनवीडिया। तो क्या नाम रहेगा उस चिप का, वो है ब्लैकवेल अल्ट्रा, AI चिप रहेगी ये। नेक्स्ट, किस कंट्री की नेवी ने अभी जॉइंटली कंडक्ट किया 23rd एडिशन ऑफ वरुणा बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज विद द इंडियन नेवी फ्रॉम 19 to 22 ऑफ मार्च इन अरेबियन सी। तो किसके साथ, वो है इंडियन नेवी एंड फ्रांस नेवी के बीच में थी, रॉयल नेवी ऑफ फ्रांस, एंड ये 23वां एडिशन है इस एक्सरसाइज का। 2 फेज में हुई थी, हार्बर फेज एंड सी फेज में। नेक्स्ट, तो अभी रिसेंटली सिंगापुर बेस्ड एक पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म है जिन्होंने इंडिया के NIPL क्या है, NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड के साथ पार्टनर किया ताकि जो ट्रैवलर्स इंडिया से सिंगापुर जाते हैं घूमने वो UPI की पेमेंट कर सके उनकी लोकल इकोनॉमी में। तो NIPL ने यहाँ पे हिटपे के साथ पार्टनर किया जो सिंगापुर की पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म रहेगी। नेक्स्ट, मेंशन द मैस्कॉट अनवेल बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट डॉक्टर मनसुख मांडविया फॉर सेकंड खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो कि दिल्ली में होंगे। तो उज्ज्वला नाम का वो मैस्कॉट रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस बुक का नाम है मार्च टू ग्लोरी द स्टोरी ऑफ इंडियाज डैश वर्ल्ड कप विन, जो कि पब्लिश की गई हॉकी सिटीजन ग्रुप के द्वारा। तो इंडिया की 1975 विक्ट्री के बारे में दर्शाया गया है इस बुक में। नेक्स्ट आ जाते हैं, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, ये सेलिब्रेट किया जाता है 20 मार्च को। इंडिया की क्या रैंक रहेगी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में, तो इंडिया 118वें पोजीशन पे आ जाता है। फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, वो है फिनलैंड। फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, फिनलैंड। सेकंड पोजीशन पे आ जाता है डेनमार्क, देन डेनमार्क के बाद आइसलैंड एंड फिर स्वीडन 4th पोजीशन पे। नेक्स्ट, मेंशन द एलिमेंट जिसको डिस्कवर किया गया इन मार्च 2025 बीनीथ द टाउन ऑफ फॉल्शविलर इन द मोसेल रीजन ऑफ फ्रांस बाय साइंटिस्ट, अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स क्लीन एंड सस्टेनेबल एनर्जी। तो उस एलिमेंट को, कौन सा एलिमेंट डिस्कवर किया गया, ग्रीन हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन डिस्कवर किया गया है, हाइड्रोजन की एक पार्ट हो जाता है ग्रीन हाइड्रोजन, राइट, जो कि क्लीन फ्यूल माना गया है, फ्यूचर फ्यूल बोला जा रहा है इसको। एंड इसके बर्न करने पे इसका जो रेजिड्यू होता है वो हाइड्रोजन मतलब वाटर निकलता है, वाटर वेपर्स। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द अक्लेम्ड प्रोड्यूसर एंड हेड राइटर ऑफ कार्टून नेटवर्क्स एनिमेटेड सीरीज जो थी करेज द कावरली डॉग, इनका रिसेंटली निधन हो गया मार्च 2025 में। ये कौन है, डेविड स्टीवन कोहन। काफी फेमस था ये करेज द कावरली डॉग, इवन मैं अपने बचपन में इसको देखता था। नेक्स्ट आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू ट्रैक्शन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड रिपोर्ट रिलीज की गई जिसमें बताया जो टोटल कैपिटल रेज किया गया है 7000 वीमेन लेड स्टार्टअप्स के द्वारा इंडिया में, वो कितना अमाउंट रेज किया गया है, टोटल अमाउंट वो है $26.4 बिलियन यहाँ पे रेज किए गए हैं। एंड इंडिया में 7000 से भी ज्यादा एक्टिव वीमेन लेड स्टार्टअप्स हैं। नेक्स्ट, DPIIT ने पार्टनर किया किस बैंक के साथ टू प्रमोट इनोवेशन एंड सपोर्ट प्रोडक्ट स्टार्टअप्स, इनोवेटर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स अक्रॉस इंडिया। तो येस बैंक के साथ यहाँ पे इन्होंने टाई अप किया है।
Next, what is the revised minimum investment threshold for zero coupon, zero principal investment instruments on social stock exchange set by SEBI, ताकि मोर अफोर्डेबल बनाया जा सके स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्टमेंट को. तो 1000 रुपये का रहेगा ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड. नेक्स्ट, मेंशन उस कंट्री को मेंशन करो दैट एमर्ज एज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेमिटेंस टू इंडिया इन FY24. इंडिया एक लौती कंट्री है जहाँ पे $100+ बिलियन का हम रेमिटेंस रिसीव कर रहे हैं एंड सबसे ज़्यादा हमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ये रेमिटेंस देखने को मिल रहा है. नेक्स्ट आ जाते हैं, उस कंपनी को आइडेंटिफाई करो जिन्होंने एक MOU साइन किया ब्लूज एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ एंड कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के साथ, ताकि जो इनका एविएशन इकोसिस्टम है उसको VTOL के ऊपर लाया जा सके, वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग. मतलब खड़े खड़े यहाँ पे ऐसे टेक ऑफ हो जाएगा, वर्टिकली टेक ऑफ लैंड हो जाएगा. ये बेसिकली ड्रोन्स ही होते हैं, लेकिन ये बड़े ड्रोन्स होते हैं जो कि इवन ह्यूमंस को कैरी कर पाएंगे, राइट. तो कौन सी कंपनी रहेगी जिन्होंने ये किया है? ये कंपनी का नाम रहेगा भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड. नेक्स्ट आ जाते हैं, हु वाज ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक सर्विस थ्रू कल्चरल लीडरशिप एट यूनाइटेड किंगडम पार्लियामेंट इन मार्च 2025. तो वो है के चिरंजीवी, काफी फेमस वेटरन एक्टर है, राइट. पद्मा अवार्डी भी रह चुके हैं एंड इनको यूके के पार्लियामेंट के द्वारा इससे सम्मानित किया गया. नेक्स्ट, हाइड्रोलॉजिस्ट गंटर ब्लॉशल, इन्होंने रिसीव किया स्टॉकहोम वाटर प्राइज फॉर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू फ्लड रिस्क रिडक्शन एंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए. ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते हैं. नेक्स्ट आ जाते हैं, किनको अभी इलेक्ट किया गया जो कि पहली फीमेल एंड 10th प्रेसिडेंट बनी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की आफ्टर विनिंग अ सीक्रेट बैलेट अमंग द 7 कैंडिडेट्स ड्यूरिंग 144th IOC सेशन इन मार्च 2025. तो यह है क्रिस्टी ले कोवर्टी स्टूवर्ट. नेक्स्ट आ जाते हैं, बजाज ऑटो लिमिटेड, इन्होंने अनाउंस किया रीअपॉइंटमेंट ऑफ किनका एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर 5 सालों के लिए. तो राजीव बजाज जी को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है रीअपॉइंट किया गया है एज MD एंड CEO. नेक्स्ट आ जाते हैं, मेंशन द स्टेट इन इंडिया जिसने रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश अ सीनियर सिटीजन कमीशन एम्ड एट इंश्योरिंग द प्रोटेक्शन वेलफेयर एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द एल्डरली पॉपुलेशन. तो केरला स्टेट वो पहली स्टेट बनी जिन्होंने सीनियर सिटीजन कमीशन को यहाँ पे लॉन्च किया है, इस्टेब्लिश किया है. नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल वाज नॉट अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ द इंश्योरेंस एडवाइजरी कमेटी बाय IRDAI. तो इनमें से किनको अपॉइंट नहीं किया गया था? संजीव सनियाल को यहाँ पे मेंबर अपॉइंट नहीं किया गया था इस कमेटी का. ये बेसिकली क्या है, अलग अलग सेक्टर में क्या इंश्योरेंस की पॉलिसीज होनी चाहिए उसको डिस्कस करेगी. नेक्स्ट, हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ ट्यूनीशिया सक्सीडिंग कैमिल मदूरी. तो कौन बने हैं नए प्राइम मिनिस्टर? वो है सारा जाफरानी ज़ेंजरी एंड ये सक्सीड करेंगी किनको? ये कमिल मादुरी को सक्सीड करेंगी एंड ये सेकंड वीमेन प्रेसिडेंट बनी है, सेकंड वीमेन प्राइम मिनिस्टर बनी है ट्यूनीशिया की. नेक्स्ट, विच कंट्री अपॉइंटेड नितुम्बू नांदी नादियाविच एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द 35th इंडिपेंडेंस डे. तो नामीबिया के द्वारा यहाँ पे इनको अपॉइंट किया गया था. नेक्स्ट, how much amount did Bain Capital commit through preferential equity allotment and warrants to acquire 18% fully diluted stake in Manappuram Finance Limited. तो कितना? वो है 4,385 करोड़ रुपए का यहाँ पे प्रेफरेंशियल इक्विटी अलॉटमेंट इन्होंने इशू किया, कमिट किया. नेक्स्ट, किस बायोटेक स्टार्टअप ने रिसीव किया रेगुलेटरी अप्रूवल फ्रॉम इंडियन पेटेंट ऑफिस इन मार्च फॉर द पेटेंट ऑफ द वर्ल्ड की पहली बाई स्पेसिफिक 3rd जनरेशन काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल्स को, जो कि है कार टी सेल्स इन इंडिया. ये कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज होंगे बेसिकली, तो डायरेक्टली याद रखेंगे. तो इनके लिए पेटेंट रिसीव हुआ है, कौन सी है वो है सेलुजन थेरेप्यूटिक प्राइवेट लिमिटेड एंड राइट, इनको यहाँ पे पेटेंट ग्रांट किया गया इंडियन पेटेंट ऑफिस के द्वारा. नेक्स्ट आ जाते हैं, किस आर्टिफिशियल AI या फिर किस EI पावर्ड यूनिफाइड क्लाउड प्लेटफॉर्म को भी टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया. तो वो उसका नाम रहेगा वायु. कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा, फ्लेक्सिबल एंटरप्राइज क्लाउड सॉल्यूशंस ये प्रोवाइड करेगा, बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा एंड इफेक्टिव कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा इंडियन बिजनेसेस के लिए. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द होमवर्क सेक्शन. फर्स्ट इज PM Vidya Lakshmi scheme to boost the education loans was launched by which bank? Second question, who has been appointed as the joint secretary of UPSC? Third question, who has been recently appointed as the managing director and CEO of IFCI? Fourth question, tell me recently who has won the Chinese Grand Prix? Fifth question, tell me recently who has won the bronze medal in the Asian Wrestling Championship. So these are your 5 homework questions, students, and I need to see maximum participation from all the students watching this video.